Hello everyone, welcome to Maneuver TISNET 2021 preparation. So here we are going to target mainly data interpretation, guys. So let's start with the question. Here we are going to see ki how in less calculation and with a simplified way of calculating things you can get the answer easily. So guys, before I start, I want to tell you one thing, that we have TISNET 2021 online live preparation batches. So if you want to join, you can just WhatsApp or call on this number, or you can log on to maneuveredu.com, guys. So let's start with the discussion. So this is our graph. This is bar graph. The following question based on this bar graph. Read the graph and answer the question. So these are finance of XYZ. This is the name, XYZ Railways in crores. Here this symbol belongs to this, that is called gross traffic receipts, and you can call this symbol belongs to total expenditure. So hope it is clear, guys. So on the basis of this data we are going to see the question, guys. Let's start with the question. What is the percentage increase in the gross traffic receipt? So gross traffic receipt is nothing but what, this black symbol in 95 to 6 as compared to 93 to 94. So this is what 93.4, and here it is 5300. So here everywhere there are 20, so I will minimize this 20 and I will consider it as only 53, because it will reduce our calculation and it will make basically easy our calculation. So guys, I can write here, so 53 of 94, 93, 94, and here 96, 5 and 96. So this is 95 and 96, and here it is 75. Okay, so here 75. So what is the increase? So here it is asking about the increase. जो ऑप्शन है उसमें वेरिएशंस ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पे वेरिएशंस थोड़े कम दिख रहे हैं, बट बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि 41 है, 33 है, बहुत मतलब 7 का 8% का डिफरेंस है. सो आई कैन थिंक लिटिल बिट इन अप्रोक्सीमेटेड वे. ओके, सो नाउ आई कैन सी कि यहाँ पे ये 53 है, इसको मैं 50 जस्ट कंसीडर कर रहा हूँ. 50 अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दैट इज 25. इजिली यू कैन फाइंड. एंड आपको परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू राइट दिस 53 ऑन बेस. सो आई हैव जस्ट कंसीडर 50, सो आई कैन राइट 50. एंड इफ यू विल फाइंड द परसेंटेज देन यू कैन राइट 1/2. सो दिस इज नथिंग बट योर 50%. ठीक है. तो अगर मैं जस्ट सपोज कि अगर ये वैल्यू क्या होता, 53 होता, ठीक है, तो ये क्या आता, ये थोड़ा सा नीचे जो है बेस क्या होता, बढ़ता. मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर देखो, अगर मैं 100 डिवाइड बाई 2 लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट सपोज, तो ये क्या होता है 50%. और अगर मैं 100 डिवाइड बाई 3 लिखता हूँ तो ये क्या होता है 33 1/3%. और नॉट, इज इट क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही बेस क्या हुआ, बढ़ा, मतलब बेस इज इंक्रीजिंग, द परसेंटेज इज गेटिंग डिक्रीज. ओके, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो वैसे ही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 53 होता, ठीक है, तो ये जो बेस है वो क्या होता, थोड़ा सा इंक्रीज होता, थोड़ा सा स्लाइड ज़्यादा, तो ये जो परसेंटेज है वो क्या होता, डिक्रीज होता है ना. अगर ये डिक्रीज होगा, सो आई कैन से एक ही ऑप्शन है दैट इज नियर बाय 50, एंड दैट इज वन एंड ओनली वन ऑप्शन, 41.5%. You don't have to find the whole percentage, guys. Okay, hope you are getting moving ahead. If profit is equal to, so here it is given कि profit is equal to gross traffic receipt minus total expenditure. So gross traffic receipt is nothing but this black symbol, and you can say this is nothing but your total expenditure. ठीक है. So then in 1996 to 1997, so here it is talking about 1996 1997. So here this is what, nothing but 85, and this is what, nothing but your 80. ठीक है, this is G and this is E, that is expenditure, and this is gross traffic receipt. Okay, hope till now it is clear. What percent, so here it is asking कि what percent of gross traffic receipt is the profit made. तो ये जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इधर कितना आएगा, 5 का, ठीक है. एंड हियर इट इज आस्किंग अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट. तो ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट क्या है, 85, तो इसका कितना परसेंट ये है, दैट इज आस्किंग. सो 5/85. सो आई कैन राइट 1/17. अब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो. अब अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो
अगर 17 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे दे देता है 102। ओके, तो मतलब 6% से, और ये 100 है, मतलब जो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करता और यहाँ पे 102 होता तो मुझे जो वैल्यू मिल जाती वो 6% मिल जाती। ओके, लेकिन 6% है क्या? नहीं, 100 है, मतलब 102 से थोड़ा सा कम, तो जो आंसर आने वाला है वो उससे थोड़ा सा कम होगा, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज नथिंग बट 5.9%। होप इट इज क्लियर, मूविंग अहेड गाइस। In which year was the total profit as a percentage of gross traffic received is the highest? Okay, so you have to find for 97, 8, 90, 6, 7, 95, 6 and 94, 5. So सबसे पहले 4, 5. So this is 4, 5. So here you have to find the same thing, the profit percent of gross traffic. यहाँ पे gross traffic मतलब off आपको दिया है, off gross traffic receipt. You have to take gross traffic receipt as your base. ठीक है, तो अगर मैं इस ईयर की बात करूं तो अभी देख लो 64 है और ये 58 है। अब इसका कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो? देखो 58 प्लस 2 करो तो दैट विल गिव यू 60 एंड दिस 4, तो 2 एंड प्लस 4 दैट इज नथिंग बट योर 6/64। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 75 है, दिस इज 59, तो 59 प्लस 1 करूंगा तो दैट इज 60 एंड प्लस दिस 15, तो मैं कह सकता हूँ 16 by this 75 because your base is nothing but the gross traffic receipt. Here it is given, I have already told you. Now ये 95 96 का हो गया, so this is, अभी 96 97 की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा, आपको पता ही है 5/18, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5/85 and here it is nothing but 88 plus 2 that is 90 and plus 4, तो 4 plus 2 that is 6/94। होप इट इज क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसको अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे क्या चाहिए सिर्फ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, दैट यू हैव टू फाइंड ओनली। सो हाउ यू कैन डू दिस इज नथिंग बट आई कैन राइट 6 11 जा 66 होता है, उससे थोड़ा कम है तो आई जस्ट राइट 11। अब ये 16 को 75 तो 16, तो दिस इज नथिंग बट 1/5। ठीक है, मैंने सबको थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, सो आई जस्ट आई एम टेकिंग लिटिल बिट मोर। यहाँ पे 1/17 आ जाएगा, यहाँ पे 1 एंड दिस इज नथिंग बट 1/16। ओके, सो आई कैन वंस अगेन आई एम राइटिंग 1/11, 1/5 और 1/17 और 1/16। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है कि जिसका, जैसे मान लो अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 100/2 लिखता हूँ तो दैट इज नथिंग बट 50%। ठीक है, लेकिन 100/3 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 33 1/3। मतलब अगर ये बेस को मैं ना कम करूंगा, देखो बेस को मैंने कम किया, मतलब ये 3 था ये 2 हुआ, तो ये कितना हो गया 50%। मतलब परसेंटेज यहाँ पे जो 33 था वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, मतलब परसेंटेज इंक्रीज और बेस इज डिक्रीज। तो जिसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जिसका बेस कम है उसका परसेंटेज वैल्यू इज मोर। अब यहाँ पे सबसे कम बेस किसका है, ठीक है 1/5 का। अब 1/5 कौन सा ईयर है देख लो, दैट इज नथिंग बट योर 95 96, सो 95 96 योर वन एंड ओनली ऑप्शन दैट इज 3। ठीक है, अगर परसेंटेज में इसको फाइंड करूं तो ये हो जाएगा 9.09, ये हो जाएगा आपका 20%, ये हो जाएगा आपका लगभग 5.9, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, और ये आ गया आपका 6.66। ठीक है, तो अभी देख लो कौन सा सबसे बड़ा है। हाँ, यू कैन फाइंड। अब परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने बताया है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपको। ओके, होप इट इज क्लियर, मूविंग अहेड। इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10% व्हाट शुड हैव बीन, मतलब कितना होना चाहिए द ग्रॉस ट्रैफिक रिसीव्ड इन करोर्स, ठीक है, इन 94 to 95। ठीक है, 94 to 95, सो हियर इट इज 94 95। यहाँ पे ये जो ग्रॉस ट्रैफिक रिसीप्ट है दैट इज नथिंग बट 64। टोटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज व्हाट दिस 58 विल रिमेन सेम। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% व्हाट शुड हैव बीन द ग्रॉस ट्रैफिक रिसीप्ट इन करोर्स इन 1994 to 1995 वेयर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेनिंग द सेम। ठीक है, तो ये 64 है। ठीक है, हमने अभी निकाला था इसका, तो ये 58 प्लस 2 दैट इज 60 एंड 4, तो जो प्रॉफिट है दैट इज नथिंग बट 6 का है, और ये आपका बेस हो गया, हाँ, जिसको आप ग्रॉस भी बोलते हो, ग्रॉस ट्रैफिक रिसीप्ट। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं
अभी इसका परसेंटेज फाइंड आउट करता हूँ जस्ट सपोज, और ये हो गया 11, तो ये मुझे जो परसेंटेज दे दिया दैट इज नथिंग बट 9.09। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको 10% बनाना है। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे आपको लिखा है कि 10% बनाना है। वैसे भी ये 1/11 नहीं है, 11 से थोड़ा सा कम है। तो मैंने क्या अभी बोला था कि अगर बेस थोड़ा सा कम होगा तो परसेंटेज क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा तो ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है कि 0.9 है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ऑलरेडी है। लेकिन मुझे अगर इसको 10% बढ़ाना है तो इस वैल्यू को मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो 64 है, या मतलब अगर इसको मैं पूरा कंसीडर करके चलूँ तो 6400 जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, मतलब इसके नज़दीक जो आपकी वैल्यू होने वाली है दैट विल बी योर आंसर। अभी देख लो, इसके नज़दीक एक ही ऑप्शन है जिसमें सिर्फ 44 बढ़ा हुआ है। ये सबसे नज़दीक जो ऑप्शन है वो आप क्या करो, ले लो और चेक कर लो। तो यहाँ पे जो है ये इंक्रीज कितना हो गया, पहले 6 था, अभी 44 ऑन और इंक्रीज हो गया। तो मैं पहले इस 6 को मैं 2 जीरो हटाया हूँ तो आई कैन कंसीडर कि 600 था, तो अभी ये 44 और बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा 644। ओके, एंड डिवाइड बाय व्हाट, दिस इज द बेस 6444, ओके, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ व्हाट 100 इफ यू want to find the percentage। अब इसको मैं अगर 1 जा और इसको अगर 10 से करूं, ठीक है, तो 644 10 जा क्या हो जाएगा 6440, लिटिल मोर देन दैट। ठीक है, 10। अब इससे अगर मैं इसको करूं तो दैट इज गिविंग अप्रोक्सीमेट 10%। सो हियर दिस ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ठीक है, मूविंग अहेड गाइस। By what amount has the expenditure increased over the period 1993 to 1994, मतलब यहाँ this and 97.8, so 97.8 this here, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है दैट इज एक्सपेंडिचर। सो दिस इज व्हाट योर एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। सो यू हैव टू कैलकुलेट, तो ये कितना है आपका 51 है एंड दिस इज नथिंग बट योर 88। तो आप क्या करो, 51 को 50 कंसीडर करो और ये 88 ही, ये कितना मिलेगा 50 मतलब 38 और ये आपने एक अभी कम किया था उसको ऐड कर दो, तो 38 + 1 दैट इज 39। तो दिस विल बी योर ऑप्शन। होप इट इज क्लियर। So this was your 5 question of data interpretation. Okay guys, so hope everything would be clear to you, and little bit of simplified way of thinking is giving you the answer without doing so much calculation. If you like the discussion, hit the like button. Do subscribe our YouTube channel. If you want to join our live preparation, you can call or WhatsApp on this number, or manoeuvreedu.com you can log on. So bye bye guys, have a good day.